What's up everyone, this is me Satyansh Sharma. I hope you guys are doing really well. The registration and application forms of JEE 2022 are out. So I conducted a community post regarding the doubts of the application and registration form. Whatever doubts you are having while filling that particular form, I will try to cover in this video, right? I got many doubts, so I thought let's clear it because जितना ज़्यादा delay होगा उतना ज़्यादा तुम लोग को problem होगा, and even I suggest you to register in JEE Mains 2022 in between 1st to 10th March. Okay, don't wait till last date 31st March so we would start filling on 25th March. No, let's begin with the doubts. Is EWS certificate issued by state government valid for JEE Main? I don't have EWS issued by central government. Yes, it is valid for JEE Main, but what I think is that it's not valid for JEE Advanced, and during the time of counseling also they demand a new certificate. I mean that format that is prescribed in JEE Advanced 2022 will be very important. For JEE Mains, it is valid. I am living in Uttar Pradesh and my EWS certificate issued by government. Is it valid? Yes, it is valid. I have already answered. Okay. My OBC certificate says to apply under the post under the government of India and it's from central list. Should I use that or do I need to make the exact same as given? No, if you have a state caste certificate, OBC certificate issued by the central government, then you can definitely use it in JEE Mains. It's not like that you have to strictly follow the format as prescribed in JEE Mains 2022 brochure. Roll number of class 12 is to be entered or left blank. As CBSE students this year are having their term 1 and term 2 exams for class 12, which may have different roll numbers. I don't think you would have different roll numbers, but still, for the safer side, you should enter the term 1 roll number, right? Because term 1 is already conducted, enter the term 1 roll number. But roll number same रहने वाला है यार, roll number मुझे नहीं लग रहा change होगा. Anyways, I don't have exact idea. Still, if you can consider someone better than me to answer this question, then definitely ask him or her. Is digital locker mark sheet can be used while uploading mark sheet for JEE Main registration? Yes, it can definitely be used. मैंने भी मेरी टाइम यूज की थी, right? But still, अगर तुम्हारे पास यार वो proper sheet पड़ी, then definitely you should scan that sheet. Okay. If I submit declaration form for OBC NCL in registration of JEE Main 2022, then in my scorecard will I get OBC NCL rank? You will be provided with both general and OBC NCL rank. ठीक है, जितने भी कैटेगरी के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, you will be provided with both your category rank as well as general rank. क्योंकि when you will visit websites, राइट, जहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स दिखाए जाते हैं, तो वहां पे जो कट ऑफ्स दिखाई जाती हैं काफी वेबसाइट्स पे, दे शो इट कंसीडरिंग योर कास्ट रैंक. ओके. विल एग्जाम्स बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर? यस, डेफिनेटली एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन थ्रू कंप्यूटर. मतलब एक स्क्रीन रहेगी, यू वोंट बी अलाउड एनीथिंग टू ओपन. वहां तुम्हारा नेम एंटर्ड रहेगा पहले से, पासवर्ड वगैरह दे विल टेल यू एट द टाइम. ठीक है, डीओबी होता है वैसे तो जहां तक मुझे याद है. ठीक है, उसके बाद सबमिट करोगे, फिर स्क्रीन आ जाएगी. जस्ट बी कंफर्टेबल, क्योंकि वो जो स्क्रीन आती है वो हर कोई पहली बार देख रहा है. पहली बार में तुम उसके साथ काफी फेमिलियर हो जाओगे. मैं एक रफ आइडिया बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन आएगा एक स्क्रीन पे, साइड में तुम्हारे क्वेश्चन नंबर्स लिखे होंगे, एंड देन यू कैन मार्क फॉर रिव्यू ऑल दैट. वो सब साइड में बॉटम में बना होगा, उससे ज्यादा तुम्हें देखना ही नहीं. ऊपर तुम्हारा टाइम डिस्प्ले हो रहा होगा, राइट. हाँ, I am unable to select exam center of 2 different states. I want to select 2 from West Bengal and 2 from Jharkhand, but I am only able to select from West Bengal. I think that's not the problem. I mean, that should not be a problem because I think मैंने देखा था, क्योंकि 4 options मिलते हैं तुमको, and in one you have to select the state, और state के सामने you have to select that particular city. तो state select करो, वहाँ city select करो, फिर state select करो, फिर city select करो. Just keep in mind कि तुम priority सही करो. ठीक है. Last year 2021 में guy filled the 4th ऑप्शन एज अंडमान एंड निकोबार बिकॉज ही थॉट कि 4th वाला क्या ही मिलेगा, बट उसको अंडमान निकोबार मिल गया था. आगे गया कि नहीं वो मेरे को नहीं मालूम. एज सच तो डाउट नहीं है, बट आपको जो लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देना. इंपॉर्टेंट पॉइंट, पासवर्ड जो तुम सेट करोगे वो ऐसा सेट करना है कि तुम्हें याद रहे, बिकॉज इट विल हेल्प यू टिल द टाइम ऑफ JEE Advanced 2022, एंड शायद काउंसलिंग के टाइम भी हेल्प करता है. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट JEE Advanced 2022 में भी तुमको हेल्प करने वाला है. तो ऐसा पार्ट सेट करना जो तुम्हें याद रहे. फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ मैंने क्या पासवर्ड सेट किया था. आई सेट द पासवर्ड JEE Advanced @2021. ठीक है, क्योंकि 2021 में JEE Advanced देना ही तो उतना तो याद ही रहेगा.
PWD सर्टिफिकेट डायरेक्टली अपलोड करना होता है क्या? डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली कैसे करोगे? आई मीन स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक है। जो भी फॉर्मेट दिया होगा, आई थिंक पीडीएफ ही दिया होगा, दे वोंट बी गिविंग जेपीजी। हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि वट एवर इमेज यू आर गोइंग टू अपलोड, जस्ट एंश्योर कि वो इमेज तुम्हारी ब्लर नहीं है, ठीक है। अदरवाइज वो रिटर्न हो जाएगी। दो विंडो विल बी ओपन फॉर सम डेज टू चेंज दैट पर्टिकुलर इमेज, बट स्टिल यू शुड ट्राई कि पहली बार में एक बढ़िया सी इमेज और बढ़िया सा सिग्नेचर हमारा अपलोड हो रहा होगा जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ में, ठीक है। एंड कंप्रेस इट, ठीक है, वहां साइज मेंशन रहेगी तो उसको कंप्रेस करना मत भूलना, ठीक है। क्या कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना एसेंशियल है 2022 का? इतना जल्दी कैसे बनेगा? सी, कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना तो एसेंशियल है ही। अगर तुम किसी कास्ट से हो, डेफिनेटली यू शुड टेक दैट एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट, क्योंकि तुम्हारी रैंक अच्छी होगी, तुम्हें कॉलेज और बेटर मिलेगा एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन एनी कास्ट, दैट इज जनरल स्टूडेंट्स, ओके। इतना जल्दी कैसे बनेगा? इफ यू हैव एन ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल 2021 के बाद के अगर तुम्हारे पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, देन इट विल बी वैलिड फॉर जेईई मेंस 2022, ठीक है। जेईई एडवांस के लिए वैलिड नहीं होगा, तो अप्रैल के बाद तुम्हें फिर से 1 अप्रैल 2022 के बाद तुम्हें एक फिर से बना लेना, उसमें अभी जेईई एडवांस और उसमें काफी गैप भी रहेगा, तो इजीली यू कैन मेक, ठीक है। बिकॉज काउंसलिंग जोसा के टाइम पे या जेईई एडवांस के टाइम पे दे वोंट एक्सेप्ट द ओल्ड वन, ठीक है, वो इसी साल का होना चाहिए, बट जेईई मेंस 2022 में इट विल वर्क आउट फॉर श्योर। मेरा अभी ईडब्ल्यूएस फॉर्म नहीं बनाया मैंने, क्योंकि उसको तो फिर से मार्च में नया बनाना पड़ता है। तो क्या मेंस के टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेलेक्ट करूं? क्यों? अगर तुम्हारे पास पुराना है देन डेफिनेटली यू शुड सबमिट इट, मैंने ऑलरेडी बता दिया। भैया कास्ट सर्टिफिकेट 2021 का है, चलेगा या नहीं? 1 अप्रैल 2021 के बाद वाले कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएंगे। आधार कार्ड ऑफ बर्थ इज डिफरेंट देन द 12th, क्या लिखा है, आई जस्ट लॉग, हाँ bro, if Aadhaar card date of birth is different than the 12th marks card, is that a problem bro? Yes, I think that's the problem, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। जनरल कैटेगरी वालों को भी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है क्या? कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ही नहीं तो अपलोड कैसे करोगे? फेक तो बनवाओगे नहीं, या बनवा भी सकते हो। एनीवेज भैया, मैंने 7 दिसंबर 2021 की ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, अब क्या होगा? परफेक्ट, 1 अप्रैल 2021 के बाद सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड हैं। One more doubt, if I submit EWS declaration but unable to submit EWS category certificate till the admission process, will it be considered as a general certificate or it may disqualify my form? It will be considered as general certificate, ठीक है। अगर एडमिशन के टाइम तक तुम्हारा EWS सर्टिफिकेट सबमिट नहीं होता है, then you will be considered as a general category student। एक ये स्टोरी भी है मेरे एक फ्रेंड की, ठीक है। मे बी, मुझे नहीं पता कि ड्यू टू सम रीजंस उसको अपना सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था, एट द एंड ही हैड टू कन्वर्ट टू जनरल कैटेगरी, ड्यू टू विच उसकी ब्रांच काफी ज्यादा गिर गई थी, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम्हारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एंड यू शुड, इट वुड बी बेटर कि अगर तुम अप्रैल में उसके लिए फॉर्म फिल कर दो डेफिनेटली। So that's it. If you still have any doubt in the comment section, then do mention. I would love to answer them. Thank you.